Good afternoon. Hello. Yes, sir. Good afternoon. Good So, afternoon, sir. have some students joined? Mm, Not yet, sir. Good afternoon. Good afternoon, Chandan, Siddharth. Good afternoon, Maitrey. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Can I start now? Hello. Can you hear me? Yes, sir. Yeah. So yesterday, good afternoon. Yesterday we had started with welcoming you all and trying to talk about this paper, which is called Philosophy of Religion. And we had very roughly introduced this idea about when we are talking about philosophy of religion, how are we to start? So, the first things first, we need to have some working definition of religion, some working definition of philosophy, and then also try to see that how it is different from theology और religious philosophy. तो कल हम लोगों ने पहले ये कोशिश की थी कि हम लोग इस पेपर में ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम धर्म दर्शन के कुछ प्रमुख विषयों के ऊपर एक विहंगम दृष्टि डालें और इसमें सब जाहिर है सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि हम ये समझने की कोशिश करें कि धर्म से हमारा क्या आशय है, दर्शन से हमारा क्या आशय है, धर्मशास्त्र या धार्मिक दर्शन और धर्म दर्शन इनमें भेद क्या है। हम इस विषय पर पुनः आएंगे जब हम लोग कुछ थोड़ी से क्लासेस में आपस में चर्चाएं कर चुके होंगे, तब हम फिर से इस बात पर आएंगे। पर आज कल की सिर्फ दो छोटी सी बातों को हम याद कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि हमने ये कहा था कि धर्म शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, पर जिस अर्थ में हम अभी धर्म की चर्चा कर रहे हैं वो धर्म का आशय ये है जिसके के अंतर्गत हम 6 या 7 मुख्य बिंदुओं को धर्म को चरित्रगत करने के लिए स्वीकार करते हैं। सो वी एक्सेप्ट 6 or 7 features, not necessarily characters, but features which go into some way or the other defining what we normally call religion. So, a belief in something supernatural, a belief in the continuity of the self after the mortal flesh is gone. The third, a belief in one book or a set of books or in some authority. The fourth, belief in certain ethical rules or rules of morality. The fifth, certain rites and rituals. The sixth, somehow or the other, a certain kind of a connection in terms of prayer with God. So these are the 5 or 6 characteristics we thought were important for all religion. As we also said कि कई बार धर्म की एक व्यापक परिभाषा ये भी दी जाती है जिसमें हम धर्म को केवल धार्मिक व्यवहार या धार्मिक अभिमुखीकरण से मानते हैं, that where you have a complete set of surrender and devotion to something, we call it religious. But we are not taking that right now. Of course we will take it specifically when we are dealing with philosophers
especially the big and important philosopher, the pragmatic philosopher William James, and his very famous work, which we will study, which is called Varieties of Religious Experience. थोड़ी सी बात ये भी कि हम दर्शन का क्या व्यू ले रहे हैं। तो जैसे हमको पता ही है कि दर्शन के बारे में भी अलग अलग दृष्टियां ली जाती हैं, अलग अलग तरीके से दर्शन को समझा जा सकता है। सो philosophy as love for knowledge is a broad definition, and then we think of philosophy as vision. Then we think of philosophy as a specific discipline where we have 5 or 6 major discussion points. And what are the discussion points? Metaphysics, in terms of which we discuss what is the nature of reality, whether reality is one or many, whether reality is changing or permanent, what are the constituents of reality, what is substance, what is causality. इस तरीके की चर्चाएं जहां हम करते हैं वो तत्वमीमांसा दर्शन का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ज्ञान के स्रोत क्या हैं, ज्ञान की वैधता अवैधता के मानदंड क्या हैं। तीसरा विषय होता है तर्कशास्त्र, कि हम वैध प्रकार से किस प्रकार से तर्क कर सकते हैं। तो आगमनात्मक तर्क हो या निगमनात्मक तर्क हो, उनके क्या नियम होते हैं, उनका क्या स्वरूप क्या होता है, उनकी परीक्षा की क्या विधियां होती हैं। These are the kinds of things which we try and study as part of logic, which is a technical part of philosophy. And then, of course, a very, very important part of philosophy, which is we call ethics. That what is good, what is virtue, what is the standard of morality, what is the nature of morality, what is the relationship of morality and other things. These are the kind of questions which we discuss in ethics. And the fifth branch, again in the classical form, is aesthetics. And what is aesthetics? What is beauty, or what is art, or what is criticism. These are the kinds of things which we discuss in aesthetics. Sometimes aesthetics and morality are clubbed together, और ethics और सौंदर्य शास्त्र दोनों को हम एक साथ रखकर जब अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं axiology, the study of values. कुछ लोग ये कहते हैं कि ये विवरण भी सही नहीं है, क्योंकि ट्रूथ भी तो एक वैल्यू है, तो अपने आप में एपिस्टेमोलॉजी को भी एक्सियोलॉजी का हिस्सा मानना चाहिए। पर ये सब विवाद हम आगे देखेंगे। मैं शुरू में सिर्फ आपको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम धर्म दर्शन ये शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम आरंभ करते हैं एक वर्किंग डेफिनेशन ऑफ रिलीजन से, और उसी तरीके से हम एक वर्किंग डेफिनेशन फिलॉसफी की भी लेके चलते हैं। तो एक हमने देखा था जब हम किसी भी जीवन दृष्टि को दर्शन कहते हैं, एनी वर्ल्ड व्यू इज कॉल्ड फिलॉसफी। दूसरा टेक्निकल मीनिंग फिलॉसफी का, जिसके अंतर्गत फिलॉसफी की ये 5 मेजर ब्रांचेस हैं। ऑफ कोर्स देयर आर अदर ब्रांचेस लाइक फिलॉसफी ऑफ माइंड, फिलॉसफी ऑफ साइंस, फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स, एंड द सब्जेक्ट वी आर स्टडीइंग फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। तो जब रिलीजन के ऊपर हम एक प्रकार का अध्ययन करते हैं, उसी तरीके से दर्शन के बारे में एक विचार ये है कि दर्शन में भारतीय परंपरा के अंतर्गत कई बार 2 प्रकार से दर्शन के बारे में चर्चाएं महत्वपूर्ण रूप से की जाती हैं। एक साधना और दूसरा अन्वीक्षा। अन्वीक्षा में हम क्या अध्ययन करते हैं? परीक्षण करते हैं, तर्क देते हैं, मौलिक चिंतन जो किया गया है उसका अध्ययन करने की कोशिश करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम अभी जब आरंभ कर रहे हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम दर्शन का एक एनालिटिकल व्यू, या अगर भारतीय संदर्भ में देखें, भारतीय दार्शनिक परंपरा के इतिहास के संदर्भ में देखें, तो अन्वीक्षा के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। A science of review, a science of review, that you have certain concepts and then you try to understand what is the meaning of those concepts, how are those concepts related to other concepts, what are the arguments given to establish those concepts and their interrelationships, and then to examine whether these arguments are coherent, whether these arguments are non-self-contradictory, and
more importantly, also the question that even supposing they are coherent arguments, even though they may be non-contradictory, are they acceptable? क्योंकि आप एक coherent argument दे सकते हैं, एक non-contradictory argument दे सकते हैं, पर वो argument देने के माध्यम से जिस बात को आप स्थापित कर रहे हो उसके बारे में आगे ये भी एक परीक्षा का विषय होगा, ये भी एक अध्ययन का विषय होगा, और ये भी एक जीवन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, और एक्सेप्टेबल है तो किसको एक्सेप्टेबल है, और एक्सेप्टेबल है तो किस मानदंड पर एक्सेप्टेबल है. So all these kinds of questions are important questions as we go into the study of philosophy. What I thought today कि कल जैसे हमने एक उदाहरण के लिए ये लिया था कि प्रायः धर्म दर्शन में धर्म के बुनियादी प्रत्ययों का अध्ययन होता है, और हमने ये माना कि सभी धर्मों में मनुष्य से अधिक सुपीरियर किसी बीइंग के बारे में चर्चा होती है. तो जो लोग ईश्वर को नहीं भी मानते वो अरहत, केवली या किसी अन्य सत्ता को मानते हैं, पर उन अपेक्षाकृत भिन्न धार्मिक परंपराओं जैसे जैन और बौद्ध धार्मिक परंपराओं को अगर हम न देखें तो अधिकांश वो सारे अध्ययन के क्षेत्र जिनको हम धर्म कहते हैं, जिनको हम रिलीजन कहते हैं, उन रिलीजन्स में जिनमें क्लासिकल रिलीजन्स में हम मानेंगे हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जूइश रिलीजन, उन सब के अंतर्गत एक बड़ा केंद्रीय विचार जो धर्म के लिए महत्वपूर्ण है वो विचार होता है ईश्वर का विचार. और उस ईश्वर के विचार के साथ ही साथ जो लोग भी ईश्वर में विश्वास करते हैं, क्या सभी वो लोग दार्शनिक हैं? नहीं है. क्या सभी लोग धार्मिक लोगों को दार्शनिक होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं है. लेकिन हम धर्म दार्शनिक किसको कहेंगे? धर्म दार्शनिक हम उस व्यक्ति को कहेंगे जो कि धर्म के अंतर्गत आने वाले प्रत्ययों के बारे में विश्लेषणात्मक अध्ययन करे और उनके लिए तर्क देने की आवश्यकता को भी महसूस करे, और न केवल उन तर्क देने की आवश्यकता को महसूस करे बल्कि उनके लिए कुछ तर्क दे भी. तो जैसे अनेक संत हुए, पूरे क्रिश्चियनिटी में भी देयर इज अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ सेंट्स एंड मॉन्क्स एंड चर्चमैन, पर हम लोग धर्म दर्शन में उन सभी का अध्ययन नहीं करते. वो सब ईश्वर को मानते थे, पर हम ज्यादातर धर्म दर्शन में इन सेंट्स में से भी उन्हीं को का अध्ययन करते हैं जिन्होंने कुछ तर्क दिए और उन तर्कों के माध्यम से अपने विश्वासों को स्थापित करने की कोशिश की. ये बात भी महत्वपूर्ण है कि ये जो धार्मिक व्यक्ति हैं वो ये नहीं मानते कि धर्म की हर बात तर्क से स्थापित हो सकती है. धर्म का बहुत सा हिस्सा वो भी ऐसा मानते हैं कि वो तर्क से स्थापित नहीं हो सकता. जैसे उदाहरण के लिए सेंट थॉमस एक्विनास ईश्वर सिद्धि के लिए प्रमाण तो देते हैं, पर ईश्वर का स्वरूप त्रिविध रूप का है, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, ये वाली बात वो तर्क से स्थापित नहीं करते. ये बात अपने आप में इंट्यूशन से या विश्वास से या सहज ज्ञान के माध्यम से स्थापित है. सो देयर इज अ पार्ट which is called revealed theology, and there is another part which we are talking about, which is actually rational theology, in terms of which we are discussing arguments which are provided by these people. कल हम लोगों ने एक बात की चर्चा की थी, जो चर्चा थी ईश्वर सिद्धि के प्रमाणों की, कि जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो प्रायः कई बार ईश्वर सिद्धि के लिए प्रमाण भी देते हैं. कई लोग ये कहते हैं कि ईश्वर के सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ईश्वर की सुख को सिद्ध करने के लिए प्रमाण देने का प्रयास ही अपने आप में अधार्मिक है, और न केवल अधार्मिक है बल्कि अनैतिक है. पर कुछ लोग ये मानते हैं कि ईश्वर सिद्धि के लिए प्रमाण देने की आवश्यकता है और वो दिए जा सकते हैं. हम लोग इस चर्चा को भी लेंगे अबाउट the relevance of the proofs for the existence of God. पर क्योंकि आपकी ये आरंभिक कक्षाएं हैं, इसलिए मैं आज आपको उस बात से शुरू करता हूं जो कि आपने बीए में भी पढ़ी होगी और जो आप अक्सर लोकप्रिय धारणाओं में भी जिसकी चर्चा करते रहते हैं. कल आपको चंदन हिमवानी ने ऐसा बच्चों को एक छोटा सा राइट अप भी भेजा था जो किसी यूनिवर्सिटी की साइट से या
किसी के कुछ नोट्स में से था, जिनमें एक पहली बात आप लोगों ने शायद देखी होगी, वो ये थी अबाउट ए प्रायरी एंड ए पोस्टीरियरी मोड्स ऑफ प्रूविंग। ए प्रायरी एंड ए पोस्टीरियरी मोड्स ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये दोनों मोड्स ऑफ प्रूविंग एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हमें खास तौर से लाइबनिज में भी दिखाई देते हैं। पर जैसा मैंने आपसे कहा कल कि प्रायः दर्शन के बारे में एक विचार ये है कि शुद्ध दर्शन वो है जो कि पूरी तरह से बौद्धिक है, पूरी तरह से ए प्रायराय है। अब ए प्रायराय का मतलब क्या होता है? ए प्रायराय का मतलब कई बार आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने बीए में पढ़ा था उनको याद होगा कि ये शब्द सबसे ज्यादा आपके जहन में, सबसे ज्यादा आपको बताया गया था कांट के दर्शन में, और वो भी कांट की फर्स्ट क्रिटिक जिसको आप कहते हैं, जिस क्रिटिक का नाम है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। ए प्रायराय के अक्सर 3 अर्थ लिए जाते हैं, जिनमें से कुछ अर्थ थोड़े से भ्रामक भी हैं। They are a little confusing. One is a priori means that which is prior to experience. That when you do not have any experience, before that, what happens and how you know something before experience. And in that sense, in René Descartes, the idea of innate ideas can be said to be the ideas of a priori. That which you know without experience. And that which you know before experience. So that which you know before experience is one meaning. The other is the meaning that for which you do not require experience to verify. वो जिसको कि वेरीफाई करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं चाहिए, वो एक दूसरा अर्थ है ए प्रायराय का। जैसे आपको ये पता लगाना है कि यह व्यक्ति कुंवारा है, तो ये बात आप कैसे पता लगाएंगे? ये आप अनुभव से पता लगाएंगे। आप उससे पूछेंगे, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, उसके माँ बाप से पूछेंगे, उसके मित्रों से पूछेंगे, और इस बात की सूचना प्राप्त करना कि ये व्यक्ति अविवाहित है, ये बात पता लगाना आपको अनुभव के माध्यम से आप प्राप्त करेंगे। पर एक कुंवारा व्यक्ति अविवाहित पुरुष होता है, यह वाक्य या यह कथन, इसको यदि आपको सत्यापित करना होगा तो आपको कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। आप ये जानते हैं कि परिभाषा से ही ये बात सत्य है। So, in order to establish the truth of a statement like a triangle has 3 angles or a bachelor is an unmarried male, you do not require any further experience apart from the initial experience which teaches you the rules of language. You do not require any further experience to prove it. So that is the second meaning of a priori. And there is a third meaning of a priori which is actually peculiar to Immanuel Kant, where a priori का मतलब है वह जो हमारे अनुभवों की पूर्व मान्यता है, that which forms the preconditions of our knowledge. दर्शन अपने आप में प्रायः अनुभवों पर आधारित नहीं होता, ऐसा लोगों का मानना है, और उनका ये कहना है कि शुद्ध दार्शनिक चर्चा अपने आप में केवल तर्कों के माध्यम से की जा सकती है। खासतौर से ये विचार विश्लेषणात्मक दार्शनिकों का विचार है, जो कि ये मानते हैं कि दर्शन का मुख्य कार्य विश्लेषण करने का है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि कोई भी बात अपने आप में ऐसी नहीं है जिसके के बारे में केवल एक ही धारणा हो सकती है। There are many views about philosophizing. There are many views about what we can call religion. But to begin with, let us basic working definitions. So we start working with a working definition. What is religion? And second, we start with a working definition of what is philosophy. So let us take, for the time being, of course we are going to take other views later, but for the time being, let us take the view of the analytical philosopher that philosophy primarily consists of an a priori analytical approach of analyzing the concepts in any subject. And in this case, we are talking about religion. तो इस समय हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं कि धर्म के अंतर्गत आने वाले कुछ बुनियादी प्रत्ययों के स्वरूप, तर्क और क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं।
So let us talk about God, and let us talk about. Sir, can you please repeat the definition of philosophy of religion, please? Sorry. Sir, can you please repeat the definition of philosophy of religion just once? The a priori analytical approach to discuss the concepts of Here religion. we are trying to take an a priori analytical approach towards religion, trying to examine the concepts which are available in religion, the nature, scope, and validity of those concepts. So supposing we are taking the concept of God, what is the nature of this concept? What is the scope of this concept? That where, how far this concept functions, and then the validity of this. Similarly, Okay, sir. religious experience, similarly, faith, similarly, reason. So in all of that, हम जब भी विश्लेषणात्मक दर्शन का नजरिया लेते हैं तो किसी भी विषय के बारे में उसका स्वरूप, नेचर, उसका स्कोप, उसका क्षेत्र और उसकी वैलिडिटी या वैधता के बारे में चर्चा करते हैं. ठीक है? Okay, sir. Okay. Yes, Now, so today let us briefly take the most important and fundamental proof for the existence of God in terms of a philosophical proof. जैसे मैंने कल आपसे कहा था कि लोकप्रिय तो सबसे ज्यादा तर्क कौन सा है? The cosmological proof. कॉस्मोलॉजिकल प्रूफ कि भाई किसी ने तो बनाया ही होगा, किसी ने पेड़ को बनाया होगा, किसी ने पहाड़ बनाया होगा, किसी ने नदी बनाई होगी, और ये सब चीजें अगर शुरू में मान भी लिया जाए कि कोई कहता है कि बिग बैंग थ्योरी सही है, तो बिग बैंग किसने किया था? तो कहीं ना कहीं पर ये पूरा जो लोकप्रियता के आधार पर तो सबसे लोकप्रिय तर्क और बड़ा इंट्यूटिवली अपीलिंग भी है कि ये कभी भी the appeal of this argument never ceases. From children to old people, everybody keeps on wondering कि भाई आप इतनी सब तर्क देते हैं, आप ये कहते हैं गलत है, वो गलत है, technical you find 200 reasons for not accepting, but there is something very intuitively appealing about this argument, and this argument is actually not an a priori argument. ये आर्ग्यूमेंट दरअसल बिल्कुल ए प्रायरी आर्ग्यूमेंट नहीं है. ये तर्क अपने आप में अनुभव आधारित है. और किस अनुभव पर आधारित है? कि संसार में हम चीजें देखते हैं और संसार में जो हम चीजें देखते हैं वो कारणात्मक नियम से बंधी हुई हैं. जब हम देखते हैं कि बाहर खुशबू आ रही है मिट्टी के भीगे होने की, तो हम सोचते हैं जरूर पानी डाला होगा किसी ने. तो हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है. ये हमारे संसार के अनुभव पर आधारित है, और इस संसार के अनुभव के आधार पर हम ये कहते हैं कि फिर संसार की चीजें भी अपने आप नहीं हो सकती, उनका कोई ना कोई कारण होना चाहिए. और ये कारण की श्रृंखला के बारे में फिर हम कहते हैं कि इसका या तो एक प्राथमिक कारण होगा या 100 प्राथमिक कारण होंगे. तो आपको याद होगा कि एरिस्टोटल ने कभी 45, कभी 52 गॉड्स की बात की थी, और कई लोग कहते हैं कि नहीं, उन सब गॉड्स का एक सुपरवाइजर होना चाहिए जो कि वन बिग गॉड होना चाहिए. सो देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन मोनोथीस्टिक रिलीजन्स, polytheistic religions and the others, but all these arguments of monotheism, polytheism are based upon an empirical observed fact. And what is the empirical observed fact? The empirical observed fact is the fact that we have experience of causation, कि हम ये देखते हैं कि संसार में चीजों का कोई ना कोई कारण होता है. उसी तरह से कल जो हमने एक दूसरे तर्क के बारे में बात कर रहे थे, वो दूसरा तर्क क्या था? वो दूसरा तर्क था टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट. वो भी ये तर्क कहता है कि संसार के अंतर्गत हमें व्यवस्था दिखाई देती है, और जब भी हमें कहीं व्यवस्था दिखाई देती है तो व्यवस्था का कोई ना कोई कारण होता है ना? तो ये जो व्यवस्था का जो कारण होता है, ये व्यवस्था का कारण कौन है? वो व्यवस्थापक होना चाहिए. वो व्यवस्थापक कोई इंटेलिजेंट बीइंग होना चाहिए, और वो इंटेलिजेंट बीइंग इस केस में ईश्वर है. तो ये जो दूसरा तर्क हम लोग देखते हैं, ये तर्क भी हम अपने आप में अनुभव आधारित तर्क है. तो टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट और कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट अपने आप में लोकप्रिय हैं, महत्वपूर्ण हैं, दार्शनिक हैं, पर शुद्धतः दार्शनिक नहीं है. ऐसा कुछ लोगों का कहना है. जो लोग ये मानते हैं कि शुद्धतः दार्शनिकता वो होती है जो कि अनुभव पर आधारित नहीं है,
जो केवल बौद्धिकता पर आधारित है, तार्किकता पर आधारित है। और उस दृष्टि से जो क्लासिकल प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड में जो हमने कल मेंशन करा था, जो सेंट एंसेलम है, उनकी किताब प्रोस्लोजियन, सेंट एंसेलम ऑफ कैंटरबरी, जिनका कल हमने जिक्र किया था, उनकी किताब प्रोस्लोजियन में दिया गया वो तर्क सबसे ज्यादा फिलोसॉफिकल माना जाता है। और आगे भी आपको याद होगा कांट इत्यादि ने यह माना था कि किसी न किसी तरह से ये तर्क अन्य तर्कों का आधार है। So the cosmological argument as well as the teleological argument are one way or the other based upon some of the things which are being established through the ontological argument. So the ontological argument, because it talks about God as a necessary being, then this necessary being is one way or the other also the being that we speak of in cosmological argument. संसार का अंतिम कारण कौन है? वह ईश्वर जो अनिवार्य है। संसार का अंतिम कारण कौन है व्यवस्थापक के रूप में? ईश्वर जो कि अनिवार्य है। तो अनिवार्य ईश्वर की अवधारणा, जिसका विचार अपने आप में किसी न किसी तरह से अन्य तर्कों पर भी का भी आधार है, इसलिए ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट के बारे में एक और बात ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि अब आप लोग बड़े बच्चे हो गए हैं और आपको न केवल आर्गुमेंट देखना है, पर आर्गुमेंट का ओरिजिनल फॉर्म कैसे आया है वो देखना है, और ये भी देखना है कि वो किस तरीके से दिया गया है। तो जैसे मैं अभी इतनी देर से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अपने आप में एक शुद्ध तर्क है, दार्शनिक तर्क है, ए प्रायराय है, एनालिटिकल है, लेकिन इसके बावजूद भी ये तर्क एक धार्मिक व्यक्ति ने दिया है जिसका नाम है सेंट एंसेलम ऑफ कैंटरबरी। और वो आर्गुमेंट किस तरीके से देते हैं? वो आर्गुमेंट देते हैं, Surely there is a God, although the fool had said in his heart, there is no God. तर्क आरंभ ये होता है कि वास्तव में ईश्वर है, हालांकि मूर्ख ने अपने हृदय में ये कहा कि ईश्वर नहीं है। ये एक बड़ा रोचक सा आरंभ है कि आप अपने ओपोनेंट को पहले ही मूर्ख कह के स्थापित कर देते हैं। तो एक तरीके से आप डिमोरलाइज कर रहे हैं कि जो तुम बात कहने वाले हो वो तो मूर्खतापूर्ण है। So he begins by saying, truly there is a God, although the fool had said in his heart, there is no God. और फिर आप देखें कि ये तर्क देते किस तरह से हैं। And this I think is very important for all of you to notice. यद्यपि ये तर्क ईश्वर को सिद्ध करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन ये तर्क इस भाषा में दे रहे हैं जिसमें कि ये खुद ईश्वर से मुखातिब हैं। He is addressing God as if he is addressing God prayer. तो ये ईश्वर को मानकर चल रहे हैं और ये तर्क देते समय भी इस तर्क को ईश्वर को अपना श्रोता मानते हुए दे रहे हैं। कैसे? Look at the language that he uses. And so, Lord, do thou, who dost give understanding to faith, give me so far as thou knowest it to be profitable, to understand that thou art as we believe, and that thou art that which we believe. तो कहते हैं, हे ईश्वर, तुम जो हमारी आस्था को बौद्धिकता प्रदान करते हो, who dost give understanding to our faith, हम आस्था के आधार पर उसको मानते हैं, पर तुम उसे बौद्धिकता प्रदान करते हो। Give me so far as thou knowest it to be profitable. जिस सीमा तक तुम सोचते हो कि ये मेरे लिए लाभकारी होगा, उस सीमा तक तुम मुझे ज्ञान दो। क्या ज्ञान दो? To understand that thou art as we believe. मुझे ये ज्ञान दो कि मैं ये समझ पाऊं कि जैसा मैं मानता हूं वैसे तुम हो। That thou art as we believe, and that thou art that which we believe.
और तुम वही हो जिसे हम जानते हैं। तो यद्यपि हम ये कह रहे हैं कि ये तर्क विश्लेषणात्मक है, यह तर्क एप्राराई है, यह तर्क शुद्ध रूप से दार्शनिक है, पर जब आप मूल तर्क पर जाते हैं तो आपको ये दिखाई देता है कि ये तर्क अपने आप में किस तरह से एक ईश्वर almost as if it is a prayer। और ये बात मैं एमए के विद्यार्थियों को खास तौर से डेकार्ट को पढ़ाते टाइम भी समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कई बार ये एक भ्रम पैदा हो जाता है कि वेस्टर्न फिलॉसफी केवल एनालिटिकल है, वेस्टर्न फिलॉसफी गॉड को नहीं मानती, वेस्टर्न फिलॉसफी के अंतर्गत केवल आर्गुमेंटेटिव स्वरूप होता है, इंडियन फिलॉसफी जो होती है वो इंट्यूटिव होती है। पर जब आप मूल ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलता है कि ये इतना सरल भेद करना उचित नहीं होगा। हम लोग थोड़ा पढ़ लें, समझ लें, देख लें और उसके बाद ये निर्णय करें कि इसमें कोई समानता है या नहीं है, या फर्क है या नहीं। तो ये जो मोटी मोटी साधारण जल्दी जल्दी सी लिखी हुई किताबों में लिखा रहता है कि वेस्टर्न फिलॉसफी ये होती है, इंडियन फिलॉसफी ये होती है, ये बातें अब आपको एमए में आप पहले से मत तय कर लीजिएगा। आप ठीक से पढ़िएगा और फिर मेरी बात को भी मत मानिएगा, ध्यान से देखिएगा। और इसीलिए मैं आपको ये मूल ग्रंथ के पैसेजेस कुछ पढ़ के सुना रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि ये जो दार्शनिक हैं ये बात क्या कह रहे हैं। And indeed we believe that thou art a being than which nothing greater can be conceived। और ये सबसे क्रूशियल आर्गुमेंट है। वास्तव में हम मानते हैं कि आप एक ऐसी सत्ता हैं जिससे कि महान सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती। और फिर वो कहते हैं, और is there no such nature such the fool hath said in his heart there is no God। और क्या ऐसा भी है कि ऐसा नहीं है? क्या कोई ऐसी सत्ता नहीं है? और जैसा मूर्ख ने कहा है, क्या कोई ईश्वर नहीं है? और इसमें वो उल्लेख करते हैं बाइबल के एक साम का, जो साम 16 का सेक्शन 1 है, जिसमें ये कहा गया है कि ईश्वर कौन है? God is a being than which nothing greater can be conceived। ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जिससे महान सत्ता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। Understands what he hears, and what he understands is in the understanding। But in any case, this fool, when he hears the being of what I speak, जब हम इस मूर्ख से हम बात करते हैं तो वो कहता है a being than which nothing can greater can be conceived, एक ऐसी सत्ता जिससे कि महान सत्ता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। He understands what he hears, वो समझता है कि ये क्या सत्ता है। And what he understands is in his understanding। और यहाँ पर बड़ा रोचक आर्गुमेंट है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो कह रहे हैं मूर्ख को भी जब हम कहते हैं कि ईश्वर की सत्ता एक ऐसी सत्ता है जिससे कि महान सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती, तो वो ये बात समझता है। जब सुनता है तो उसकी समझ में आ जाता है। जो कुछ वो समझता है वो उसकी समझ में है। Whatever he understands is in his understanding, although he does not understand it to exist। हालांकि वो ये समझता है कि वो सत्ता नहीं है। और यहाँ पर वो एक बड़ा रोचक सा आर्गुमेंट की भूमिका बना रहे हैं। व्यक्ति समझता है, जो कुछ समझता है वो उसकी समझ में है, परंतु वो ये समझता है कि ये सत्ता नहीं। So there are three things: he understands it when he hears it, whatever he understands exists in his understanding, but he understands it not to exist। आगे आर्गुमेंट वो क्या दे रहे हैं? And this is something which you have to look at very carefully। For it is one thing for an object to be in the understanding and another to understand that object exists।
इन दो चीजों में फर्क है। एक चीज तो ये कि कोई चीज हमारी समझ में है, समथिंग इज इन आवर अंडरस्टैंडिंग। भाषा देखिए, ऐसा लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग कोई जगह है जहां पर कोई चीज रखी जा सकती। सो देयर इज समथिंग टू बी इन द अंडरस्टैंडिंग एंड अनदर टू अंडरस्टैंड दैट एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट। और ये एक दूसरी बात है कि हम ये माने कि कोई वस्तु अस्तित्ववान है। और यहां पर एक्विनास एक चर्चा करते हैं जो कि अपने आप में थोड़ी सी आपको रोचक भी लगेगी, थोड़ी सी भ्रम पैदा करने वाली भी है, पर वो ही उनकी मूल चर्चा है। और वो कहते हैं, when a painter first conceives of what he will afterwards perform, he has it in his understanding. जब कोई चित्रकार कोई चित्र बनाने के बारे में सोचता है तो वो चित्र पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग में होता है, उसके समझ में होता है। But he does not yet understand it to be. पर उसने अभी क्योंकि बनाया नहीं है, इसलिए वो ये नहीं मानता कि वो चित्र, वो वस्तु है। He has it in his understanding, but he does not understand it to be because he has not yet performed it. क्योंकि उसने अभी तक उसको बनाया नहीं। But after he has made the painting, पर जब वो पेंटिंग बना चुका होता है, he has both that in his understanding and he understands that it exists because he has made it. पर जब वो चित्र बना चुका होता है तब उसको ये पता होता है कि ये चित्र उसके मनस में भी है और अस्तित्ववान भी है क्योंकि वो उसने उसको बना लिया है। अब इस बात को वो देखते हैं कि अब ये ईश्वर सिद्धि के विचार से कैसे संबंधित है। Hence, even the fool is convinced that something exists in the understanding at least than which nothing greater can be conceived. अब वो एक बहुत ही रोचक महत्वपूर्ण तर्क दे रहे हैं। मूर्ख व्यक्ति भी ये मानता है कि उसकी बुद्धि में कम से कम एक विचार है of a being greater than which cannot be conceived. एक ऐसी सत्ता का जिससे कि महान सत्ता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है? For when he hears this, he understands it. क्यों? क्योंकि जब वो ये बात सुनता है, God ये शब्द सुनता है और ये सुनता है कि God is a being greater than which cannot be conceived, तो ये बात उसकी समझ में आ जाती है। और जो कुछ भी वो and whatever he understands exists in the understanding, जो कुछ भी वो समझता है वो उसकी समझ में है। And assuredly that than which nothing greater can be conceived cannot exist in the understanding alone. जो कुछ केवल जो एक ऐसी सत्ता की कल्पना है जिससे कि महान सत्ता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी सत्ता केवल अंडरस्टैंडिंग में नहीं हो सकती। हम इसको आगे डिटेल में देखेंगे, पर मैं आपकी अशांत होते हुए चित्त को सेटिस्फाई करने के लिए आपको ये बात यहाँ पर फिर से याद दिला दूं। वो ये कह रहे हैं कि ईश्वर का प्रत्यय क्या है? The idea of God is of a being greater than which cannot be conceived. Now, if such a being exists only in the understanding and not in reality, there is going to be a contradiction. Why? Because idea is not a being greater than which cannot be conceived in the understanding. The idea is of a being greater than which cannot be conceived at all. ईश्वर की सत्ता का विचार एक ऐसी सत्ता का विचार है जिससे कि महान सत्ता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कल्पना कहाँ नहीं की जा सकती? वास्तविकता में, समझ में, संभावना में, सपने में, अतिरिक्त जगत में कहीं भी नहीं की जा सकती। So the statement is actually an unconditional statement that God is a being greater than which cannot be conceived at all. ईश्वर की सत्ता एक ऐसी सत्ता का विचार है
जिससे कि महान सत्ता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर यदि ऐसी सत्ता केवल अंडरस्टैंडिंग में होगी और वास्तविकता में नहीं होगी, तो हम एक दूसरी सत्ता की कल्पना कर सकते हैं, जो कि जिसमें वो सारे गुण हो जो कि पहली सत्ता में है, और वो अंडरस्टैंडिंग में है, और उसके अलावा वो वास्तविकता में भी है। तो ये दूसरी सत्ता जो कि जिसमें कि वो सारे क्वालिटीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो पहली में है, जो अंडरस्टैंडिंग में है, उसके अलावा वो रियलिटी में भी एग्जिस्ट करती है। तो वो जो दूसरी सत्ता है जो केवल अंडरस्टैंडिंग में एग्जिस्ट करने वाली सारे गुणों से संपन्न है और वास्तविकता में भी एग्जिस्ट करती है, वो पहली सत्ता से अधिक महान हो जाएगी। लेकिन हमारा विचार क्या था? God is a being greater than which cannot be conceived at all. Therefore, the Anselm says, for suppose it exists in the understanding alone, then it can be conceived to exist in reality, which is greater. Therefore, if that than which nothing greater can be conceived exists in the understanding alone, the very being than which nothing greater can be conceived is one than which is greater can be conceived. तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसी सत्ता है जिससे कि महान सत्ता की कल्पना भी नहीं की जा सकती, पर ये सत्ता वास्तविकता में नहीं है। इसका मतलब है हम एक ऐसी सत्ता की कल्पना कर सकते हैं जो कि सबसे महान है, लेकिन उससे भी महान सत्ता की कल्पना की जा सकती है जो वास्तविकता में भी हो, पर ये कॉन्ट्रडिक्शन है। बट ऑब्वियसली दिस इज इम्पॉसिबल, स्पष्ट रूप से यह असंभव है। Hence, there is no doubt that there exists a being than which nothing greater can be conceived, and it exists both in the understanding and reality. और इससे वो ये प्रमाणित करते हैं कि ये स्पष्ट हो जाता है कि एक ऐसी सत्ता है जिससे कि महान सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती, और ये सत्ता न केवल हमारी समझ में विद्यमान है बल्कि वास्तविकता में भी विद्यमान है। So a being greater than which cannot be conceived exists not only in understanding but also in reality. So God cannot be conceived not to exist. Anselm ये कहते हैं कि ईश्वर के सत्ता का न होना की कल्पना नहीं की जा सकती। सवाल ये था कि ईश्वर के होने की कल्पना की जा सकती है, नहीं। कंक्लूड ये करते हैं, गॉड कैनॉट बी कंसीव्ड नॉट टू एग्जिस्ट। ईश्वर के हम सत्ता के न होने की कल्पना नहीं कर सकते। गॉड इज दैट than which nothing greater can be conceived. ईश्वर वह है जिससे कि महान की कल्पना नहीं की जा सकती। That which can be conceived not to exist is not God. जिसके अस्तित्व के न होने की कल्पना की जा सकती है वह ईश्वर नहीं है। तो एक तरीके से ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट ईश्वर के प्रत्यय के विश्लेषण के माध्यम से ही ईश्वर की सत्ता को स्थापित कर देता है। What is the concept of God? A being greater than which cannot be conceived. इस विचार के अध्ययन से, इस विचार के विश्लेषण से, इस विचार की डिटेल में एग्जामिनेशन से ही अपने आप में ये प्रमाणित हो जाता है कि ईश्वर है। So from the very concept of God, the existence of God follows, and it assuredly exists so truly that it cannot be conceived not to exist. न केवल ईश्वर की सत्ता है बल्कि उसकी सत्ता इतनी निश्चयात्मक है कि उसके अनस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। For it is possible to conceive of a being which cannot be conceived not to exist, and this is greater than one which can be conceived not to exist. तो हम ऐसी सत्ता की कल्पना कर सकते हैं जो हो, और ऐसी सत्ता की कल्पना कर सकते हैं जो हो लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में वो नहीं भी है। पर ईश्वर की सत्ता की जब हम कल्पना करते हैं तो वह एक ऐसी सत्ता है जिसके न होने की कल्पना नहीं की जा सकती। And that I think is very, very, very important, very, very crucial,
to the argument which we are examining, which is generally called the ontological argument. यहाँ पर मैं एक और बात भी आप बच्चों को याद दिलाना चाहता हूँ. ये जो वर्गीकरण है, ontological argument, cosmological argument, pragmatic argument, teleological argument, जिन दार्शनिकों ने ये तर्क दिए थे, उन्होंने इन तर्कों को इस रूप में नहीं दिया था. एंसेलम अपने आर्गुमेंट को ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट नहीं कह रहे हैं. कई बार आप ये पढ़ते हैं कि ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट डेकार्ट में भी मिलता है. डेकार्ट अब ये नहीं कह रहे हैं कि मैं ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट दे रहा हूँ, बल्कि वास्तव में आगे हम लोग जब देखेंगे तो डेकार्ट दो तरह के आर्गुमेंट दे रहे हैं. एक आर्गुमेंट ये दे रहे हैं कि हमारे मन में ईश्वर का प्रत्यय है जो जन्मजात है, उसका कारण ईश्वर है, तो वो कारणात्मक तर्क है. कारणात्मक तर्क है तो क्या हो, कारणात्मक तर्क होने की वजह से वो सृष्टिमूलक तर्क बन जाता है. वो सृष्टिमूलक तर्क भी नहीं बन जाता, क्योंकि वो ये नहीं कह रहे हैं कि सृष्टि का कारण ईश्वर है. वो ये कारणता के प्रत्यय का प्रयोग तो कर रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि गॉड इज द कॉज ऑफ द आइडिया ऑफ गॉड इन माय माइंड. दूसरा तर्क वो दे रहे हैं कि गॉड इज एन आइडिया ऑफ अ परफेक्ट बीइंग एंड अ परफेक्ट बीइंग मस्ट नेसेसरली एग्जिस्ट. और उनका ये आर्गुमेंट कई बार लोग ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट के रूप में समझते हैं. सो डेकार्ट्स आर्गुमेंट इज नॉट a purely ontological argument in the sense in which the argument of Anselm is. So what I'm trying to tell you is that the ontological, cosmological, pragmatic, teleological, these names are given by people who are writing in philosophy of religion or who are writing the history of philosophy. The philosophers themselves, like Anselm or Thomas Aquinas or Kant or Descartes, are actually not using these terms. तो हम लोग जब कह रहे हैं ontological argument एंसेलम का, तो भी हम एंसेलम का तर्क देख रहे हैं, और तर्क में ये कहा जा रहे हैं, ये बात कही जा रही है that God is, it is, if we are saying, for it is possible to conceive of a being which cannot be conceived not to exist, and this is a greater than one which can be conceived not to exist. तो किसी सत्ता की यदि आप अनस्तित्व की भी कल्पना कर सकते हैं, और उसके साथ एक दूसरी सत्ता है जिसके कि अनस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो दूसरी सत्ता पहली सत्ता की अपेक्षाकृत अधिक महान होगी. But it is an irreconcilable contradiction. तो अगर आप ईश्वर को एक ऐसी सत्ता मानते हैं जिससे कि महान सत्ता की कल्पना भी नहीं की जा सकती, तो वो वास्तव में अस्तित्ववान नहीं होगी. ये बात अपने आप में एक irreconcilable contradiction है. ये इस प्रकार का विरोधाभास है जिस विरोधाभास को किसी भी तरीके से सुलझाया नहीं जा सकता, उसको समेटा नहीं जा सकता. So truly, therefore, dost thou exist. और जैसा मैंने आपसे कहा था कि अब आप जब पढ़ते हैं एमए में, तो खासतौर से हम लोग टेक्सुअल स्टडी कराने की कोशिश करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में. आप देखते होंगे कि प्रोफेसर पांडे आपको लगातार बताते हैं कि सेक्शन 1 में क्या लिखा है, सेक्शन 1.2 में क्या लिखा है, 1.3 में, क्योंकि ये एक डिसिप्लिन है कि जब आप फिलॉसफी पढ़ रहे हैं तो आपको जनरल फीचर्स, कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस, ये सब तो आनी ही चाहिए. लेकिन एक स्कॉलर की एक ये भी दायित्व है कि आप देखें कि मूल ग्रंथ के अंतर्गत जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसमें इस बात को कैसे रखा गया है. तो यहाँ पर भी मैं आपको ये याद दिला रहा हूँ और फिर दोबारा याद दिलाता हूँ कि यद्यपि ये एक पूरी तरह से शुद्ध दार्शनिक तर्क है, एप्राराय तर्क है, प्योर तर्क है, और हम इसे एनालिटिकल भी कह रहे हैं, पर जब देने वाला सेंट एंसेलम दे रहा है, वो इसको ईश्वर को साक्षी मान के दे रहा है, और वो कह रहे हैं सो ट्रूली देयरफॉर डस्ट thou exist. हे प्रभु, आप इसलिए इतनी प्रामाणिकता से अस्तित्ववान है. ट्रूली का मतलब यहाँ पे सत्यता नहीं होगा, प्रामाणिकता होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑथेंटिसिटी का वर्जन है. ओ लॉर्ड माय गॉड, दैट thou canst not be conceived not to exist and rightly. तो आपके अनस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती.
For if a mind could conceive of a being better than thee, the creatures would rise above the creator, and this is most absurd. और यदि आपसे महान, आपसे बेहतर सत्ता की कल्पना हम जो आपके बनाए हुए कृतियां हैं कर सकते होते, तो ये एक ऐसी स्थिति होती जहां पर कृति कर्ता से महान हो सकती है, एंड दिस इज मोस्ट एब्सर्ड, और ये अपने आप में एब्सर्ड है. आगे जब आप लोग एग्जामिन करेंगे तो मैं आप लोगों से ये चाहूंगा कि आप ये सोचिए कि क्या कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि जो कृति है वो कर्ता से महान हो. कई बार हम कहते हैं ना कि बेटा बाप से बड़ा हो गया, या आपने कोई बहुत ऐसी महान चीज बनाई जो कि आपसे ज्यादा साइज में भी बड़ी है, आपसे ज्यादा ज्ञान में भी बड़ी है. जैसे आप कंप्यूटर्स बनाते हैं जिनके अंदर बहुत सारा ज्ञान डाल देते हैं जो अन्य लोगों से भी सीखा हुआ है. पर यहाँ पर ये एक विश्वासी धार्मिक आस्थावान व्यक्ति अपनी बात कह रहा है, और वो ये कह रहा है कि अगर हम एक ऐसी सत्ता की कल्पना कर सकें जो सबसे बड़ी है, सबसे बेटर है, और वो आपसे भी बड़ी है, तो फिर ये तो ऐसी स्थिति होगी कि ये स्थिति वैसी होगी जहां पर कृति कर्ता से अधिक महान हो गई है, और ये असंभव है. ये तर्क बिल्कुल ऐसा ही तर्क आप डेकार्ट में भी देखते हैं. And indeed, whatever else there is except thee alone can be conceived not to exist. केवल आप ही एक ऐसी सत्ता हैं जिनके की अनस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती. To thee there alone, therefore, it belongs to exist more truly than all other beings, and hence in a higher degree than all others. तो आप में ही सत्ता अधिक मात्रा में विद्यमान है अन्य वस्तुओं से. सत्ता की मात्रा हो सकती है ये विचार आमतौर पर नहीं होता, लेकिन डिग्रीज ऑफ रियलिटी का आइडिया फिलॉसफी में आपको याद होगा, आपने पहले पढ़ा होगा. डिग्रीज ऑफ रियलिटी आपने प्लेटो में भी पढ़ी थी कि परिकल्पनात्मक सत्ता है, उससे बेहतर सत्ता अनुभव सत्ता है, उससे बेहतर सत्ता गणितीय तत्वों की सत्ता है, और सबसे ज्यादा सत्ता का जो श्रेष्ठतम रूप है वो है आइडियाज में. सो यू टॉक अबाउट डिग्रीज ऑफ रियलिटी फ्रॉम द imaginary reality where there is reality but limited, then there is reality of the senses, sensible objects, then there is the reality of mathematical objects, and then there is the reality in the most perfect sense where there is perfect reality, and that is the world of ideas. So the idea of degrees of reality, which you also find in Indian philosophy when you talk about when you are looking at Advaita Vedanta or certain other versions of Indian philosophy, where there is the sensory world, then there is the other world which is non-sensory, and we talk about different stages as well. So here, when you are looking at the original statement of Anselm, you see that to thee alone there belongs to exist more truly than all other beings, and hence in a higher degree than all others. तो अस्तित्व भी आपके अंतर्गत हे ईश्वर अन्य वस्तुओं की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में विद्यमान है. For whatever else exists does not exist so truly, and hence is a less degree it belongs to exist. संसार की अन्य सभी चीजें भी जो अस्तित्ववान हैं वो कम सीमा तक अस्तित्ववान है, आपके अंतर्गत ही पूर्ण अस्तित्व विद्यमान है. Why then has the fool said in his heart that there is no God? फिर मूर्ख ने क्यों कहा कि ईश्वर नहीं है? साम में ये बात कही कि मूर्ख ने अपने हृदय में कहा कि हृदय नहीं है, क्योंकि it is so evident to a rational mind that thou dost exist in the highest degree of all. ये तो बात बिल्कुल स्पष्ट ही है कि अस्तित्ववानता आपके अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान है. फिर मूर्ख ने क्यों कहा कि ईश्वर नहीं है अपने हृदय में? और एक बड़ी रोचक बात है जिससे वो अपनी बात को यहां पर खत्म करते हैं. Why accept
that he is dull and a fool. मूर्ख ने अपने हृदय में ये क्यों कहा कि ईश्वर नहीं है? इसका सिर्फ सरल कारण ये है कि वो डल है और वो मूर्ख है। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि ये तर्क देने का स्वरूप भी अपने आप में बड़ा रोचक है कि आप शुरू ही ये बात इससे कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मान रहा वो मूर्ख है, और फिर वो ये ऐसी बात क्यों कह रहा है कि ईश्वर नहीं है? उसका जवाब क्या है? उसका जवाब भी ये है क्योंकि वो मूर्ख है। बट ये केवल परिहास की बात नहीं है। लुक एट द होल आर्गुमेंट. द आर्गुमेंट इज अ सीरियस आर्गुमेंट, एंड द आर्गुमेंट इज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड is a concept of a being greater than which cannot be conceived. Such a being cannot be said to be existing only in the understanding, because to exist in the understanding and to exist in reality, if we are to compare the two, to exist in reality is greater than to exist in understanding alone. Therefore, if we are saying that the concept of God is a concept of a being greater than which cannot be conceived, then it automatically follows that the non-existence of God is impossible, and God must exist not only in the understanding but also in reality. तो आज हम अपनी बात को यहाँ खत्म करते हैं और इस आर्गुमेंट को आगे देखेंगे कि मॉन्क गोनेलोन ने इसके ऊपर क्या बात कही, फिर स्वयं एंसेलम ने इसके बारे में बात क्या कही, फिर हम देखने की कोशिश करेंगे कि अन्य दार्शनिक ये जो 10वीं 11वीं शताब्दी में दिए गया तर्क था इसको आगे कैसे ले जाते हैं. आई होप. So can I ask a question? Yes, please do. Sir, anything which is perfect, like for example, you gave the example of a painting. If the painter assumes in his mind or conceives of a perfect painting in his mind, then he conceives it as a perfect painting. So then it is necessary for that painting to exist because he conceives it as perfect. Like then how then like yes sir. Yeah, a very, very good argument. This is exactly the kind of an argument which Monk Gonelon gave. And he said कि ये अगर आप सिर्फ परफेक्शन का आइडिया जोड़ देने भर से आप किसी चीज को अस्तित्ववान स्थापित कर देंगे तो आप you can say there's a perfect pen, there's a perfect island, और वो गोनेलोन यही एग्जांपल देते हैं कि एक परफेक्ट आइलैंड है जिसके अंतर्गत सभी तरह की प्राकृतिक संपदा है और सभी प्रकार के धन धान्य हैं, और वहां पर कोई रहता भी नहीं है, क्योंकि कोई रहेगा तो कोई थोड़ी सी गंदगी वगैरह पे फैलाएगा तो वहां पे कोई रहता भी नहीं है. तो ऐसा परफेक्ट आइडिया आइलैंड का अगर हम आइडिया बनाएं तो क्या इससे ये प्रमाणित किया जा सकता है कि वो आइलैंड एग्जिस्ट करता होगा? क्योंकि आपने सिर्फ यही तो कहा कि वो अगर अंडरस्टैंडिंग में एग्जिस्ट करता है तो उसको वास्तविकता में भी एग्जिस्ट करना होगा था. तो इसके आगे चलकर जब हम देखते हैं तो इसका जवाब, और हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, ये आइडिया और एक्सप्लोर करना पड़ेगा. और उस आइडिया में हम ये देखते हैं कि गॉड का आइडिया और उसकी एग्जिस्टेंस केवल उसके परफेक्शन से नहीं फॉलो करती. क्रिश्चियनिटी के अंतर्गत एक और आइडिया है जिसको हम कहते हैं इन्फिनिट सेल्फ एग्जिस्टेंस, जिसको आमतौर पर ASEITY भी कहा जाता है कि ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जो कि आत्म आश्रयी है, वो किसी अन्य के द्वारा सीमित नहीं होती. तो अगर हम एक परफेक्ट आइलैंड की बात करते हैं तो क्योंकि वो आइलैंड है तो फिर भी वो सीमित है, क्योंकि वो एक ऐसी बॉडी है जो कि पानी से घिरी हुई है. एक परफेक्ट पेंटिंग भी उसी तरीके से परफेक्ट होने के बावजूद पेंटिंग ही तो है. उसके अंतर्गत समस्त गुण तो नहीं है परफेक्शन के. बट गॉड इज एन आइडिया ऑफ अ बीइंग greater than which cannot be conceived, which means he has all the perfections in the world. So there is nothing which limits him. और क्योंकि nothing limits him, therefore it is only in case of God and his perfection that his existence follows from that. Okay, sir. Yes. An idea of a perfect pen, an idea of a perfect painting, an idea of a perfect island
is still an idea of a thing which is limited. तो आइडिया ऑफ गॉड से गॉड की एग्जिस्टेंस अपने आप पे केवल परफेक्शन के आइडिया से नहीं फॉलो करती, इट ऑल्सो फॉलोज फ्रॉम द अदर आइडिया ऑफ हिज बीइंग अनलिमिटेड. Okay, sir. Right? We will look sir. at it, and we will. I'm very happy that you are raising this argument, and you must now congratulate yourself that you are in the company of very great philosophers. You have raised the question which was raised by no other than the great monk Gonalon as against the great Saint Anselm. I hope you are enjoying this class and you are enjoying sir. this subject, and hope you will be interested to read more of it. मोटी मोटी बातें, जनरल बातें तो आप लोगों ने बीए में पढ़ी थी. अब हम लोग थोड़ा इसको और क्लोजली पढ़ें ताकि हमको इसमें और मजा आएगा. So we again are now meeting on Monday. So till that time, please read, please enjoy, please think about many things, and let us continue the journey of enjoying this great subject called philosophy. Thank you. Thank you, sir.